Good morning, students. In the last class, we have started a topic that is distribution of employment by the region in which the self-employed, regular salaried employees as well as casual wage laborers are divided into the urban workers as well as in the rural workers. Okay, next topic what we have discussed, that is distribution of employment in different sector, that is primary sector, secondary sector and the tertiary sector. So employment in the firms, factories and the offices. Okay, so we have discussed that is all economic activities are divided into 8 different industrial division. First one is agriculture, mining, quarrying. Third one is manufacturing. Fourth is electricity, gas and water supply, construction, trade, transport and storage and services. Okay, so all these economic activities are further divided or the clubbed into the three categories or the three sector, that is primary, secondary and the tertiary. So agriculture is clubbed into the primary sector, mining, quarrying, electricity, gas, water and supply and the construction, it is included or the clubbed into the secondary sector, and the trade, transport and storage and services are comes under the service sector. Okay, so the distribution of employment in different sectors like this, that the how many people are employed in the primary sector, in the secondary sector as well as in the tertiary sector. Okay, we have also studied this data which is given the distribution of workforce by industry in 2011 or 12. Okay, so in the primary sector, rural people are 64.1% are employed. In urban, only 6.7% are employed in the primary sector. Okay, so when we talk about the secondary sector, so 20.4% people are employed in rural areas, 35% people are employed in the urban in the secondary sector, and in the tertiary sector or the service sector 15.5% are engaged in the tertiary sector, basically in the rural areas, and the 58.3% are engaged in the tertiary sector in the urban areas. Okay, so when we talk about the according to gender, men and women, so men are engaged in the primary sector is 43.6, women are 62.8, secondary sector 25.9 and the women is 20%, and in the tertiary or the service sector it is 30.5 and the 17.2. So when we talk about the totality, so in the primary sector, when we taking the data in 2011-12, so in primary sector 48.9 means around 49% people are engaged in the primary sector, 24.3% people are engaged in the secondary sector, and in the tertiary or the service sector it is 26.8%. नाउ आपके लिए एक होमवर्क ये है, आप अभी प्रेजेंट का डेटा बताओ कि कितने पीपल प्राइमरी सेक्टर में इंगेज हैं, कितने सेकेंडरी में और कितने टर्शरी सेक्टर में. दिस इज़ योर होमवर्क. ठीक है, इसमें आपको बताना है कि 11-12 में तो हमने देख लिया कि प्राइमरी सेक्टर में 49% है, सेकेंडरी में 24.3 और टर्शरी में 27%. अभी रिसेंट का डेटा बताइए जब भी आपको 18 और 19 का मिलता है कि कितने पीपल कहाँ पे इंगेज हैं, किस सेक्टर में इंगेज हैं. ओके, so you have to do homework, so we will discuss in the online class. Okay, so we have also started the topic that is growth and the changing structure of the employment, growth and the changing structure of employment. So two development indicators are here to expand economy, मतलब इकॉनमी को जब एक्सपेंड होती है तो हम किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं. तो दो डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स क्या हैं, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितना एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ हो रहा है, और ग्रोथ ऑफ जीडीपी. ओके, ग्रोथ ऑफ जीडीपी की हम लोग बात करते हैं. सो सिंस 60 years of planned development, India aimed at expansion of economy through increase in national product and employment.
During the period 1950 to 2010, GDP of India grew positively, ranging to 4 to 7% and was higher than the growth of employment. However, there was always fluctuation in the growth of GDP. During this period, employment grew at stable rate of around 2%. Okay, इसमें क्या कह रहा है कि इन 60 ईयर्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जो प्लान डेवलपमेंट है इंडिया का, जो एम है एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्सपेंशन से कैसे हो सकता है, व्हेन देयर इज़ इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्ट, कंट्री का जो हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है और डोमेस्टिक इनकम है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, वो अगर इंक्रीज़ होता है, जीडीपी इंक्रीज़ है, और जब एम्प्लॉयमेंट क्या है, जनरेशन ऑफ मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट क्या है कि ड्यूरिंग पीरियड 1950 टू 2010 इंडिया की जो जीडीपी थी, 1950 से 2010 के बीच में इंडिया की जो जीडीपी थी वो क्या थी, पॉजिटिव थी, और किसके बीच में फ्लक्चुएट करी थी, फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 4 to 7%, 4% to 7% के बीच में क्या करी थी, वो फ्लक्चुएट करी थी, कभी 4, कभी 5, कभी 6 और कभी 7, मतलब इसी के अराउंड ही क्या हो रही थी, फ्लक्चुएट करी थी। एंड वॉज हायर देन द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट के ग्रोथ से क्या था, ज़्यादा था। ओके, क्योंकि ये फ्लक्चुएट जो कर रहा था वो 4 to 7% के बीच में कर रहा था, और जो एम्प्लॉयमेंट रेट थी वो उस टाइम क्या थी, अबाउट 2%, 2% ही लोग क्या थे, एम्प्लॉयड थे, और जो हमारा जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा था वो कितना हो रहा था, 4 to 7% के बीच में। ओके, सो ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज वाइडनिंग गैप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। इस पीरियड में क्या देखा गया कि जो ये जीडीपी था वो उसका जो गैप था वो क्या था, वो जो उसका गैप था वो बहुत ज़्यादा वाइडन होता चला जाता, मतलब ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड द एम्प्लॉयमेंट, उसका गैप जो था वो दोनों बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता जाता, मीन्स एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत रेयर ही इंक्रीज़ करी थी, अराउंड 2%, और जो जीडीपी था वो 4 to 7 के बीच में ही फ्लक्चुएट कर रहा था। इट मीन्स दैट द इंडियन इकॉनमी वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज बट विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब यही था कि जो हमारी इंडियन इकॉनमी है, ठीक है, उसमें क्या था कि वी आर एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, हम लोग इतना कैपेबल हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, बट विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, बिना एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किए, मतलब एम्प्लॉयमेंट ने इंक्रीज़ करी थी, जितने लोग एम्प्लॉयड थे उतने ही लोग क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज़ कर रहे थे। सो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड दी जॉबलेस ग्रोथ। इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। मीन्स ग्रोथ तो हो रहा है बट जॉबलेस, मतलब जॉब नहीं हो रही है बट इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। सो इसे ही हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ओके, सो दस जॉबलेस ग्रोथ refers to a situation when the economy is able to produce more goods and services without corresponding increase in the level of employment. Okay, yeah, jobless growth क्या होता है, it is a situation when the economy is able to produce more goods and services. Economy क्या है, it is the capable to produce more and more goods and services but without corresponding increase in the level of employment. मतलब एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है और जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड दी जॉबलेस ग्रोथ। सो इन अदर वर्ड्स देयर इज़ इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी विदाउट करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इज़ इंक्रीजिंग बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट इंक्रीजिंग। जीडीपी इंक्रीज हो रहा है बट विदाउट द एम्प्लॉयमेंट opportunities. Okay, so this is the diagram, or we can't say the diagram, it is the line which show the rate of the growth of the GDP and the employment. Okay, you can see here this is for the pink one is for, okay, this one for GDP, this is for GDP and this one is for employment. Okay, so you can see the difference between the both of them. Okay, when we talk about the 1950 to 2010, the see the difference. Yes,
बट इन 1961 टू 66 द गैप क्या हो गया था, ये देखिए कम हो गया इन दोनों के। फिर ये कंटिन्यूसली फिर इंक्रीज़ करने लगा, इंक्रीज़ करके फिर इतना ज़्यादा गैप हो गया एंड देन इट डिक्लाइंस, इतना डिक्लाइन हुआ, फिर इतना गैप हो गया, फिर गैप हो गया एंड देन 2005 और 2010 के बीच में ये गैप सबसे ज़्यादा था। देख रहे हैं जीडीपी क्या है, जीडीपी इज़ 8.7 अराउंड के बात हो रही है, और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट है इट इज़ जस्ट 0.28। फिर आफ्टर डैट जो 1 जीडीपी हमारा 7.8 हो गया और एम्प्लॉयमेंट इज़ 1.2। सो ये क्या शो कर रहा है, ये दोनों की जो बार ग्राफ हम लोग ने ले रखा है देख रहे हैं, इसमें यही शो कर रहा है कि ये कैसे जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट का जो गैप था वो कैसे वाइडन होता चला जा रहा है। ओके, सो द सबसे ज़्यादा गैप आप लोग देखिए यहीं पे है इन दी 2005 और 10। सो द अबव फिगर 7.3 shows that the in the late 1990s 1990 के बाद से यहाँ से आफ्टर दैट क्या हो रहा है, द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। जो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ है यहाँ देखिए यहाँ तक इंक्रीज़ किया है, बट इसके बाद क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट फिर डिक्रीज़ करने लगा, फिर इंक्रीज़ किया एंड देन डिक्रीजिंग। सो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ started declining and reached the level of growth that India had in the early stages of planning। ठीक है, और कहाँ पे रीच कर गई, देखिए कहाँ पे स्टेज रीच कर गई, जहाँ पर वो प्लानिंग के इनिशियल स्टेज पे थी। कहाँ पे थी इनिशियल स्टेज पे, 0.39 1951 to 56, और यहाँ देखिए कहाँ पे फिर हो गई, फिर आगे। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या कर रहा है, वो डिक्लाइन होता चला जा रहा है। ओके, यस। नेक्स्ट इज चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर वाइज, मीन्स जो एम्प्लॉयमेंट में चेंज आ रहा है वो किसके अकॉर्डिंग, सेक्टर वाइज में कितना चेंज आ रहा है, मीन्स प्राइमरी में, सेकेंडरी और दी इन दी टर्शियरी। एज देयर इज वाइडनिंग gap between the growth of GDP and the growth of employment, it is necessary to find out employment growth and GDP growth have affected different sectors of the workforce. So as there is widening gap between the growth of GDP and growth of employment, ठीक है, we are seeing that graph कि ये जो गैप है जीडीपी का और एम्प्लॉयमेंट का, वो गैप क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ करता जा रहा है। It is necessary to find out how employment growth and GDP growth have affected different sectors of the workforce। तो ये it is very necessary, हमें ये बहुत जानना ज़रूरी है to find out, ये find out करना कि कैसे जो employment का growth है और GDP का growth है have affected different sector of the workforce, वो कैसे different जो sectors हैं workforce के उनको वो कैसे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, कि जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, दी सर्विस सेक्टर है और द टर्शियरी सेक्टर, वो कैसे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट दी सेक्टर्स ऑफ द वर्क फोर्स। सो इट विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ओके, इट विल बी क्लियर फ्रॉम दिस टेबल। सो लेट डिस्कस दिस टेबल, दैट इज ट्रेंड्स इन द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न इन द सेक्टर वाइज। ठीक है, सेक्टर वाइज में हम देखेंगे, और ये डेटा कब का है, 1972 से 2012। ओके, यू कैन सी when we talk about in 1972 or the 73, the contribution of the primary sector is 74.3%, in secondary sector 10.9%, और in the service sector it is 14.8%। ओके, हम लोग जब 72 प्राइमरी और सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है, प्राइमरी सेक्टर कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर कितना कर रहा है, एज वेल एज सर्विस कितना कर रहा है। तो जब 72-73 में देखते हैं तो प्राइमरी सेक्टर कितना कर रहा है, 74.3% कर रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन 74.3 कौन कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर, एंड देन सर्विस सेक्टर इट इज़ अबाउट 14.8, और सबसे कम कौन सा कर रहा है, सेकेंडरी sector। Okay, and next one is when we talk about the 1980s or in the 83, so the primary sector is 68.6, around 69%। secondary sector क्या हुआ है, इसके comparatively 72-73 के comparatively increase हुआ है,
So it is about the 11.5%, and the service sector is around 16.9%. Okay. In the 1993 to 1994, the primary sector contribution is declining. See, the continuously primary sector's contribution is declining, 74.3 to 68.6, and then 64. Okay, so 1993 to 1994 में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 64% है प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर 16%, एंड द सर्विस सेक्टर इज़ 20%. ओके, तो अभी क्या है, प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, एंड देन सर्विस सेक्टर का, और आफ्टर डैट सेकेंडरी सेक्टर का. नेक्स्ट वन इज़ 1999 टू 2000. ठीक है, 1999-2000 में देखिए प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 60.4 हो गया, सेकेंडरी सेक्टर का 15.8% हो गया, एंड देन सर्विस सेक्टर का कितना हो गया? 23.8%. ओके, अभी यहाँ पे फिर क्या है, प्राइमरी का सबसे ज़्यादा है, एंड देन सर्विस सेक्टर का, आफ्टर डैट सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है. जीडीपी में एम्प्लॉयमेंट का ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द वर्कफोर्स, जो डिफरेंट सेक्टर्स है ना वर्कफोर्स के, उनके कि प्राइमरी में कितना कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी में कितना है, और दी सर्विस में. इन दी 2011-12 the GDP of the primary sector, the primary sector which is contributed in the GDP, so the rate is declining. In the primary sector it is only 48.3, in the secondary it is increasing. Okay, you can see here it is increasing 10.9 to 11.5, then 16, then it again decline, and after that it again starts to increase. So in the 11-12 it is about 24.3%, and in the service sector it is 26.8%. Okay, you can see here that the contribution of the primary sector is continuously declining, 74.3 to 68.6, and then 64, and then 60, after that 48.9. In the secondary sector you can see 10.9, it is increasing and then increasing, but it again declining, and after that it again increase. In the service sector it is continuously increasing. You can see 14 to 16, 16 to 20, 20 to 23, and 23 to 26. Okay, so this table shows there was decline in the workforce engaged in the primary sector about the 74% to about 48.9 in 2011-12. Okay, as we already discussed कि जो workforce है वो क्या हो रहा है, they are the one who are engaging in the primary sector, वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है. 74.3% था 72-73 में, जो डिक्लाइन होके 48.9 हो गया. सेकेंडरी सेक्टर एग्जिबिटेड इंक्रीज फ्रॉम अराउंड 11 टू 24.3. ठीक है, जो सर्विस सेक्टर है वो कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, 11 से वो 24.3 इंक्रीज़ हो रहा है. टर्शरी सेक्टर शोड इंक्रीज फ्रॉम 15 in 1972-73 to around 27 in 11-12. ओके, टर्शरी सेक्टर का देखिए वो 15% था, अब वो 15% से इंक्रीज़ होके 26.8 मीन्स अराउंड 27% क्या हुआ है, वो इंक्रीज़ हुआ है. ओके, so this trend proved that structural changes took place in India as there is shift in the employment from primary to secondary and the tertiary sector. Okay, ये जो ट्रेंड्स है, ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या शो कर रहे हैं कि इकॉनमी में क्या है, वो पूरा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है. स्ट्रक्चरल चेंज मीन्स कि जितने लोग एम्प्लॉयड थे अलग अलग प्राइमरी में, सेकेंडरी में, एज वेल एज टर्शियरी में, वो क्या हो रहा है, वो पूरा चेंज हो रहा है. मीन्स जो एम्प्लॉयमेंट है, लोगों की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न है, वो क्या हो रहा है, जो पीपल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी सेक्टर. देखिए तभी ये जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, डिक्लाइन करता जा रहा है, और सर्विस सेक्टर का क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ करता जा रहा है. ओके, तो ये टेबल यही शो कर रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में कितने पीपल इंगेज हैं, और ये विद द चेंजेस इन द ईयर के चेंज होने पे जो कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर का,
वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ओके. नेक्स्ट वन इज चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Till now what we have discussed, the changing structure of employment in the sector wise means primary, secondary or this tertiary, or now the changing structure of employment in the status wise में कितना changes हो रहा है. So we also need to know employment trends according to status, that is distribution of workers as self-employed, casual worker or the regular salaried employees. Let us understand this with the help of following table. Okay, so we also need to know employment trends according to status, कि हमें जो employment का trends है वो status के according भी हमें जानना चाहिए. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स एज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन जो भी वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सेल्फ एम्प्लॉयड में कितना है, कितने पीपल सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कितने कैजुअल वर्कर हैं और कितने रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेबल. वो क्या है, इसको फॉलोइंग टेबल के थ्रू क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो ट्रेंड्स इन द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न स्टेटस वाइज. ओके, स्टेटस वाइज की कितने लोग कहाँ पे वर्क कर रहे हैं. वी विल कंपेयर द डेटा फ्रॉम 1972 टू 2012. ओके, सो इन दी 1972 और 73 सेल्फ एम्प्लॉयड इज 61.4%. ओके, 61.4% क्या हैं, लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं. रेगुलर सैलरीड में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 15.4% हैं. और कैजुअल वेज लेबरर्स कितने हैं, 23.2%. तो सेल्फ एम्प्लॉयड क्या हैं, लोग ज़्यादा हैं और एंड देन कैजुअल वेज लेबरर्स हैं. बट इन द केस ऑफ 1983 व्हाट वी आर सीइंग दैट द जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है फ्रॉम 61 टू 57. एंड देन रेगुलर सैलरीड भी क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है 15 to 13%. एंड देन कैजुअल वेज लेबरर्स इंक्रीजिंग, इट इज़ अबाउट 28.9 around 29%. Okay, next one is 1993 to 1994. So self-employed is 54.6, regular salaried employees is 13.6, and the casual wage laborers are the 31.8%. So self-employed is also declining 54.6, and regular salaried also declining, so it is 13.6. But the casual wage laborers are increasing from 23 to 28, 28 to 31. So in 1999 to 2000, the rate is yes, status wise we can see that in the self-employed around 52.6% are the in the self-employed are the self-employed. रेगुलर सैलरीड पर्सन कितने हैं, 14.6 हैं जो रेगुलर सैलरी के हैं. और कैजुअल वेज लेबरर्स कितने हैं, 32.8. ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है. और सेल्फ एम्प्लॉयड में जब हम देखते हैं तो ये क्या कर रहा है, डे बाय डे डिक्रीज़ कर रहा है. ओके, और रेगुलर सैलरीड 15 से 13 डिक्रीज़ किया. एंड देन फिर 1994 में भी डिक्रीज़ किया, बट आफ्टर दैट इट इंक्रीजिंग. ओके, सो इन द 2011-12 the self-employed is 52% and the regular salaried is 18% and the casual wage laborers are the 30%. So self-employed is also declining, but the regular salaried people are increasing up to the 18%, and the casual wage laborers are when we compare it to 2000, so it is declining, it is about the 30%. ओके, सो सिंपली इट शोज़ दी कि जो स्ट्रक्चर है एम्प्लॉयमेंट का कैसे वो चेंज हो रहा है. लोग कहाँ पे कितना, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड में, रेगुलर सैलरीड में, कैजुअल वेज लेबरर्स में कितने पीपल, कितने इंडिविजुअल काम कर रहे हैं. ओके, सो द अबव टेबल शोज़ दैट द परसेंटेज ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स डिक्लाइन फ्रॉम द 61% in 1972 to 73 to about 52% in 11-12. Okay, we have already compare it कि 72-73 में 61% थे और 11-12 में कितने हो गए, 52% हो गए. तो ये क्या हो रहा है, इट स्टिल कंटिन्यूज़ टू मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. स्टिल ये क्या है, ये मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है क्योंकि ये डिक्लाइन होता जा रहा है, बट स्टिल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट. अराउंड
52% मीन्स 50% से ज़्यादा लोग क्या हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में इंगेज हैं. नेक्स्ट वन इज़ देयर हैज़ बीन माइनर चेंजेस इन द रेगुलर सैलरीड वर्कर. जो रेगुलर सैलरीड वर्कर्स हैं उनमें भी चेंजेस आया है. इट हैज़ इंक्रीज स्लाइटली. ये क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ये स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है. 73 में 15.4% था, जो 11-12 में कितना हो गया है, 18%. मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजेस अकर हुआ है. नेक्स्ट वन इज शेयर ऑफ कैजुअल वर्कर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 23% इन 1972 टू 73 अराउंड 30% इन 11-12. जो कैजुअल वर्कर हैं वो भी क्या हुए हैं, इंक्रीज़ हुए हैं 23% से 30% में. ओके, सो एक बार ये ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था 2032 हुआ एंड देन इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन. बट व्हेन वी कंपेयर इट फ्रॉम द 72 to 73 it increased. Okay, so it is also the one comparison in the employment pattern according to the status wise. Okay, next topic is informalization of the Indian workforce. Okay, so one of the objective of the development planning in India since independence has been to provide decent livelihood to its people. It has been envisaged that the industrialization strategy would bring surplus worker from agriculture to industry with better standard of living as in developed country. Though there has been tendency to shift from the primary sector to secondary and the service sector, more than half of the Indian workforce depends on the farming as major source of livelihood. It has also been observed that over the years, quality of improvement has not become better. We find that the small section of Indian workforce is getting regular income compared to other who do not get regular income, and other benefits related to jobs such as maternity benefits, provident fund, gratuity, pensions, etc. Okay. The question is, why does a worker in private sector get a low salary as comparison to another worker doing in the same job in the public sector? The structure of employment in India can be divided into formal or organized sector or informal or unorganized sector. Okay, so informalization of the Indian workforce. जो इंडियन वर्कफोर्स है, जो बेसिकली इंडिया में जो वर्किंग कैपिटल है, वो उनका इनफॉर्मलाइजेशन मीन्स तो देयर आर टू सेक्टर्स, फॉर्मल सेक्टर और दी इनफॉर्मल सेक्टर. तो उन सारे वर्कर क्या है, दे आर मोर इंगेज इन द प्राइवेट सेक्टर. और प्राइवेट सेक्टर में उनको अगर वो सेम स्टेटस पे मीन्स सेम जॉब तो हम नहीं कह सकते, मतलब जैसे जो वो अगर उस पोस्ट पे है और दूसरा प्राइवेट सेक्टर में उसी पोस्ट पे, तो दोनों की सैलरीज़ और दोनों के जो डिफरेंट स्कीम्स होती है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, वो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. जो पब्लिक सेक्टर में होता है उनको ये सारे बेनिफिट्स जैसे ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड्स, डिफरेंट टाइप का पेंशन्स क्या हैं, उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. वही प्राइवेट सेक्टर में इतने सारे प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं. तो यही बात हो रही कि ये सारी सर्विसेज बस पब्लिक सेक्टर को को ही क्यों दिया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं. ओके, तो यही इसका जिस्ट है कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस हैज़ बीन प्रोवाइड डिसेंट लाइवलीहुड टू इट्स पीपल. ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट प्लानिंग का कि एक डिसेंट लाइवलीहुड उसके पीपल को मिल जाए. मीन्स इतना लोगों के पास हो जाए कि लोग अपने जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको फुलफ़िल कर सकें. ठीक है, एक ये ऑब्जेक्टिव रहा है डेवलपमेंट का in India. So it has been envisaged that the industrialization strategy would bring surplus worker from agriculture to industry. तो इसमें ये देखा गया कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज़ अगर सेटअप होंगी, तो इससे क्या होगा, जो भी सरप्लस वर्कर एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ से उनको रिमूव करके क्या कर दिया जाएगा, इंडस्ट्रीज़ में कर दिया जाएगा. ठीक है, अब वहाँ पे वो ज़्यादा हैं तो उनका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है. इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू पीपल को क्या करना है, वहाँ पे वर्क प्रोवाइड कर देना है, so that they can also fulfill their basic necessities as well as they can also increase their standard of living. Though there has been tendency to shift from primary to secondary and the tertiary sector, more than half of the Indian workforce depend on the farming as the major source of
livelihood. As we already seen that the जो ये टेंडेंसी है कि शिफ्ट किससे हो रही है, प्राइमरी से सेकेंडरी एंड देन सेकेंडरी से टर्शरी, स्टिल जो हाफ ऑफ द इंडियन वर्क फोर्स है, मतलब अगर टोटल इंडियन वर्क फोर्स की बात लेते हैं, अगर 10 लाख अगर वर्क फोर्स है, वर्किंग पीपल हैं, तो 5 लाख से ज़्यादा भी स्टिल लोग क्या हैं, फार्मिंग पे ही मेजर सोर्स ऑफ उनकी लाइवलीहुड है. सो इट हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व दैट ओवर द ईयर्स क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट हैज़ नॉट बिकम बेटर. मीन जो क्वालिटी है, इम्प्रूवमेंट की जो क्वालिटी है वो बेटर हो ही नहीं रही है. वी फाइंड दैट द स्मॉल सेक्शन ऑफ द इंडियन वर्क फोर्स इज़ गेटिंग रेगुलर इनकम कंपेयर टू अदर हु डू नॉट गेट रेगुलर इनकम. अगर हम कंपेयर करते हैं तो इंडियन जो वर्क फोर्स है उनमें बहुत स्मॉल सेक्शन ही पीपल हैं जिनको रेगुलर इनकम मिल रही है, और अदर डू नॉट गेट दी रेगुलर इनकम, और अदर्स को कोई भी रेगुलर इनकम नहीं मिल रही है. एंड अदर बेनिफिट्स, और अदर भी बेनिफिट्स हैं जो भी जॉब में मिलती हैं, लाइक मैटरनिटी बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, एज वेल एज ग्रेचुटी, पेंशन, ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है. मैटरनिटी मीन्स जब किसी को विमेन को कोई बेबी होता है तो ये जो एक बेनिफिट्स मिलती है कि उसको 6 मंथ्स की लीव दे दी जाएगी, एज वेल एज उसको सैलरी उतनी ही मिलती रहेगी. तो ये सारी क्या है, फैसिलिटीज़ भी सबको प्रोवाइड नहीं होती है. ओके, सो द स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉर्मल, that it is also called the organized sector, or the informal, it is called the unorganized sector. Okay, so it's all about your today's class. We will continue further in the next class. Okay, thank you.